Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. This is class 11th Food Nutrition and today we are going to start with chapter number 1 of unit 1. ये book आपको कहाँ से मिलेगी, study material आप कैसे access कर सकते हैं? This I have already shared in the previous video, right? So just let me show. Unit 1 contains how many chapters? I think there are 5 chapters in unit 1. यस ये देखिए आपका ये यूनिट 1 है बेटा और इसमें देयर आर 5 चैप्टर्स. सो टुडे आई एम गोइंग टू फिनिश this chapter number 1, that is about nutritional status and primary health care. So without wasting any time, let's start with the chapter. So इसको zoom कर लेते हैं ताकि it can be easily visible. Yeah. So you know that this is an introduction जिसमें आपको ये बताया हुआ है कि जो भी आप फूड इनटेक करते हैं they are made mostly of biochemicals. Food are made of biochemicals and ये हम biochemicals है कहाँ से हमें मिलता है ये from the living sources जैसे from plants and animals. तो फूड्स के 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं. फर्स्ट इज कार्बोहाइड्रेट्स, सेकंड इज प्रोटीन and fats and derivatives of these. So what are the 3 main constituents in foods? Carbohydrates, proteins and fats. Then you may be asked what is the definition of nutrients? Nutrients क्या है? जो भी essential substance which are contributed by our food, they are called nutrients. लेकिन better definition हम आगे chapter में पढ़ेंगे धीरे धीरे. तो उसमें ज़्यादा बेटर और डिफाइंड डेफिनेशन है बट फॉर द टाइम बीइंग व्हाट इज इफ इट इज आस्क्ड व्हाट इज न्यूट्रिएंट तो जो भी फूड एसेंशियल सब्सटेंस प्रोवाइड करता है हमें उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स, राइट. अगर हमारे फूड में ये न्यूट्रिएंट्स ना हो तो देयर कैन बी द रिजल्ट कैन बी इल हेल्थ, राइट. सो फूड कंटेन्स मेनी सब्सटेंसेस ऑल्सो which are non-nutrients. Nutrients तो provide करता है food में nutrients भी होते हैं लेकिन कुछ non-nutrients भी होते हैं. जैसे non-nutrients कौन से हो गए? Coloring, flavoring substances which are harmful for health. But there are certain non-nutrients also which are important for human health. तो ऊपर ये वाला जो point है जिसमें बोला है कि non-nutrients जो हैं जैसे coloring एंड फ्लेवरिंग सब्सटेंस ये हार्मफुल होते हैं लेकिन कुछ नॉन न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो इम्पोर्टेंट भी होते हैं. वो कौन से हैं? फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, राइट. सो दिस इज पॉइंट नंबर 2. देयरफॉर फूड जो है वो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स एंड नॉन न्यूट्रिएंट्स. तो फूड में दोनों चीजें होती हैं. फूड में बोथ न्यूट्रिएंट्स एंड नॉन न्यूट्रिएंट्स. तभी लिखा है कि कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होता है. नाउ फंक्शंस क्या है फूड के? सो जो भी हम फूड ईट करते हैं उसमें बहुत सारे इट कंटेन वेरियस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स. तो न्यूट्रिएंट्स को हम इन 5 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं. फर्स्ट इज प्रोटीन, सेकंड इज कार्बोहाइड्रेट, थर्ड इज फैट, फोर्थ इज विटामिन्स एंड फिफ्थ इज minerals. So what are the 5 main categories? Protein, carbohydrates, fats, vitamin and minerals, right. So food also has social and psychological function in addition to physiological one. तो अभी डिटेल में पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल फंक्शंस कौन से होते हैं, what are social functions and what are psychological function. तो पहले हम पढ़ते हैं फिजियोलॉजिकल फंक्शन. फिजियोलॉजिकल फंक्शंस जो फूड प्रोवाइड करता है वो कौन से हैं? What are the types of physiological functions? Food हमें energy देता है. It helps in body building. It also provide or does protective and regulatory functions. तो ये जो है आपके energy giving, body building, protective and regulatory. ये किसके अंदर आ गए? Physiological functions. Energy giving functions जो है वो बेसिकली कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं? एनर्जी गिविंग कौन से न्यूट्रिएंट्स हमें देते हैं? इट इज प्रोवाइडेड बाय कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. सो एनर्जी फंक्शन जो है
it is performed by these two nutrients, carbohydrates and fats. तभी इन carbohydrates और fats nutrients को हम बोलते हैं body fuels. तो पेपर में आ सकता है, what are the categories of nutrients which comes in the category of body fuels. तो आप body fuels अगर nutrients पूछे जाएं आपसे तो आप लिखेंगे carbohydrates and fats, and they provide energy, right? So food हमें और किस लिए चाहिए? For growth and repair. So growth और repair के लिए कौन सा nutrient growth और repair करने में help करता है? Proteins. So protein helps in growth and repair, right? Other main physiological functions performed by food are protective and regulatory functions. So protective किससे बोलते हैं? यहाँ पे definition दी है. Protective का मतलब होता है कि protective function क्या है? Food कैसे protective function provide करता है? Food जो है हमें infection ना हो, prevent करता है कि infection our body should not catch the infection. और वो कैसे इंश्योर करता है कि हमारी बॉडी जो है, it should be free from infection. So it provides the basic nutrients which helps in protecting our body from the infection, right? What is regulatory function? Regulatory function refers to the, यहाँ पे definition लिखी है, role of food in controlling the body processes. So preventing में क्या आ गया कि हमारे न्यूट्रिएंट्स जो हमें फूड से मिलते हैं वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम द इन्फेक्शंस, और रेगुलेटरी में कि हमारा जो फूड है वो कुछ बॉडी प्रोसेसेस को कंट्रोल करता है. हमारी बॉडी में काफ़ी प्रोसेस हो रहे होते हैं, जैसे हार्ट बीट हो रही होती है, राइट, एंड बॉडी टेम्परेचर जो है या मसल्स जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, ये सारे प्रोसेसेस है. सो इन सारे प्रोसेस को जो है फूड जो है कंट्रोल करता है. कैसे कंट्रोल करता है? कि दिस इज अचीव बाय सर्टेन स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स जो रेगुलेटरी फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, जैसे विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन. ये क्या करते हैं? दे कंट्रीब्यूट टू बोथ प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी फंक्शन, एंड सो डज वाटर ऑल्सो. सो लेट मी जस्ट गिव अ रीकैप ऑफ दिस, राइट. अब आपको न्यूट्रिएंट्स की 5 कैटेगरीज पता है: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल. फूड क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है? सोशल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल. फिजियोलॉजिकल में कौन से फंक्शंस फूड परफॉर्म करता है? एनर्जी गिविंग, बॉडी बिल्डिंग, प्रोटेक्टिव, रेगुलेटरी, राइट. एनर्जी गिविंग कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स. बॉडी बिल्डिंग के लिए यानी ग्रोथ रिपेयर के लिए प्रोटीन्स. प्रोटेक्टिव और रेगुलेटरी कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है प्रोटेक्टिव रेगुलेटरी फंक्शंस में हेल्प करते हैं? विटामिन, मिनरल्स, राइट. तो ये जो है दे परफॉर्म प्रोटेक्टिव एंड रेगुलेटरी. प्रोटीन्स ऑल्सो. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोशल फंक्शन? सी, फूड का एक बहुत सिग्निफिकेंट सोशल मीनिंग है. तो व्हाट वी डू व्हेन वी शेयर फूड विद आवर फ्रेंड्स, तो इसका मतलब क्या होता है कि इट इम्प्लाइज सोशल एक्सेप्टेंस. जब आप किसी के साथ फूड शेयर करते हो तो इट मीन्स यू आर एक्सप्रेसिंग that you are willing to accept the friendship. And food is very important. कोई भी religion हो, कोई भी festival हो, तो आप उस festival में हमेशा you ask your mother कि आज special क्या बना है, आज दिवाली है, आज होली है. तो जो भी इवन आपके फेस्टिवल्स होते हैं, आप उसको किस फॉर्म में सेलिब्रेट करते हो? बाय enjoying the meal with your family, friends, by enjoying and sitting food together. So food becomes very important इंटीग्रल पार्ट, राइट. स्वीट्स ऑफर करी जाती हैं टेम्पल्स में, गुरुद्वाराज में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है एज अ प्रसाद. सो फूड इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ सोशल एंड रिलीजियस लाइफ ऑफ पीपल, राइट. नाउ साइकोलॉजिकल फंक्शन, यहाँ पे देखिए मैंने हाईलाइट किया हुआ है कि फूड जो है इट इज क्लोजली अलाइड टू आवर इमोशंस, राइट. सो जब भी आप देखिए कैसे इमोशंस के साथ फूड जो है वो एसोसिएटेड है. whenever we get some recognition for our hard work, जैसे if you stand first in your class, तो आप कैसे उसको सेलिब्रेट करोगे? You will again throw the party, right, and have lavish food. और इसी तरह अगर कोई भी पर्सन जो है वो बीमार हो जाता है, अगेन बीमारी में भी
we give different type of food to that person. We give खिचड़ी, we give दलिया. So कौन सा फूड आपको बेसिकली हम लोग खाते हैं वो डिपेंड करता है कि क्या सिचुएशन है. सो साइकोलॉजिकली इमोशनली भी हम लोग जो फूड जो है इट परफॉर्म साइकोलॉजिकल फंक्शन, राइट. यहाँ पे देखिए लिखा है कि सर्टेन फूड्स बिकम एसोसिएटेड विद सिकनेस. खिचड़ी, अगर नॉर्मल डे में अगर आप अपने मदर आपको बोले बेटा खिचड़ी बनी है तो आप कहोगे मैं कोई बीमार थोड़ी ना हूँ जो मैं खिचड़ी खाऊं. नॉर्मली ऐसी स्टेटमेंट दी जाती है. बट अलग अलग टाइप की सिचुएशन में अलग अलग फूड सर्व किया जाता है, राइट. सो द टाइप ऑफ फूड इज जनरली ईटन जब पर्सन जो है वो फीवर, उसे फीवर हुआ है, एंड ही इट इज द सिचुएशन इज नॉट एसोसिएटेड विद प्लेजेंट फीलिंग. सो तीन फंक्शंस हैं, फिजियोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल. दीज थ्री फंक्शंस आर परफॉर्म बाय फूड. तो फर्स्ट आपका फिजियोलॉजिकल हो गया था, सेकेंड इज सोशल, and third is psychological. Now comes the definition of nutrition. अभी मैंने आपको बताया था जैसे हम चैप्टर को आगे पढ़ेंगे तो better definition will be written and you can go through this definition. ये वाली जो definition है कि nutrition is defined as science of food, the nutrients and other substances therein. तो ये वाली जो definition है आप इसको रीड जरूर करिए, बट लर्निंग के लिए थोड़ा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा. तो अगर आपको न्यूट्रिशन की डेफिनेशन लर्न करनी है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, सो आप पॉली सिंपल डेफिनेशन भी लर्न कर सकते हैं जो ऊपर यहाँ पे लिखी थी. ये देखिए, कि न्यूट्रिएंट्स दे प्रोवाइड दी, ये दिस डेफिनेशन यहाँ मैं लिख देती हूँ. न्यूट्रिशन कि जो एसेंशियल सब्सटेंस प्रोवाइडेड और कंट्रीब्यूटेड बाय द फूड दे आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स. नाउ मूविंग टू द टॉपिक अगेन. यस, सो हमारी बॉडी में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, राइट, कि कई लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स चाहिए, कई स्मॉल अमाउंट में चाहिए. जो लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लार्ज अमाउंट में जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए उनको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, और जो स्मॉल अमाउंट्स में न्यूट्रिएंट चाहिए उसे हम बोलते हैं micronutrients. So macronutrients means nutrients required in large amount and micronutrients का मतलब होता है nutrients required in small amounts, right. तो balance होना बहुत जरूरी है कि हमारा जो food है it should provide the nutrients in the balance and the required quantity. right amount में हमें nutrients मिले और right proportion में हमें nutrients मिले, that is very important. So nutrients are the constituents or the substance in food. और अभी मैंने आपको बताया कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर. सो दे हैव सम स्पेसिफिक फंक्शन, राइट. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स का मैंने आपको बताया था, दे प्रोवाइड एनर्जी, राइट. प्रोटीन्स हेल्प्स इन दिस बॉडी बिल्डिंग. सो यहाँ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट का स्पेसिफिक फंक्शन होता है. Now let's study about different aspects of nutrition. First is social and cultural aspect of eating. तो मैंने अभी आपको बताया कि बहुत फूड का एक स्पेशल एसोसिएशन है सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट में, राइट. सो our ancient Vedic tradition emphasizes food as the life giver. Food, what does food does? Food gives life. अगर आप जस्ट इमेजिन द सिचुएशन कि अगर आप 2-3 दिन खाना ही नहीं खाते, योर बॉडी बिकम्स वेरी फ्रेजाइल, यू विल फील वीक, यू विल फील देयर इज नो स्ट्रेंथ इन द बॉडी. सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वन हैज टू कीप अ पर्सन सोशल एंड कल्चरल बैकग्राउंड इन माइंड व्हेनेवर वी टॉक ऑफ इम्प्रूविंग और मॉडिफाइंग फूड रिलेटेड प्रैक्टिसेस. सो नेक्स्ट इज साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग. व्हाट डज इट मीन साइकोलॉजी ऑफ ईटिंग? साइकोलॉजिकली भी फूड का बहुत इन्फ्लुएंस होता है, राइट. जैसे हमारे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जब भी हम हमें फूड को सिलेक्ट करना है, हमें चॉइस बेसिकली शो करनी है कि व्हाट वी हैव टू ईट. तो बहुत सारे फैक्टर्स जो है हमारे चॉइस को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे एडवर्टीजमेंट्स और एटीट्यूड ऑफ अदर पीपल अराउंड अस. आप एडवर्टीजमेंट में देखते हो आजकल तो बहुत ज्यादा फूड्स की एडवर्टीजमेंट होती है.
बेसिकली चिप्स के पैकेट जब बच्चे एडवर्टीजमेंट में देखते हैं, दे गेट टेम्प्टेड टू बाय इट. सो दीज एडवर्टीजमेंट दे इन्फ्लुएंसेस द चॉइस ऑफ आवर फूड. इसका क्या इम्पैक्ट होगा आगे वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि जब एडवर्टीजमेंट्स इस तरह की जाती हैं, दे आर कमर्शलाइज्ड एडवर्टीजमेंट्स, देयर मेन मोटिव इज टू प्रमोट द सेल ऑफ द प्रोडक्ट. और बच्चे जब ऐसे एडवर्टीजमेंट्स को देखते हैं और चीजों को खरीदते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द इम्पैक्ट ऑफ बाइंग सच पैकेज फूड्स ऑन देयर हेल्थ, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज, वो भी डिटेल में आगे हम पढ़ेंगे. थर्ड इज इकोनॉमिक्स ऑफ फूड. तो फूड कॉस्ट मनी. तो जो भी फूड हम खरीदते हैं इट मस्ट बी विद इन दी रीच. एंड दूसरी चीज है कि फूड शुड बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन. तो ये देखिए मैं आपको बता ही चुकी हूँ, कार्बोहाइड्रेट्स का एनर्जी गिविंग है. इसमें कौन कौन से फूड्स आते हैं? शुगर, स्टार्च, फाइबर. फैट्स में दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, तो ये सारी चीजें आती हैं. बटर, चॉकलेट, एवोकाडो, एक्सेट्रा. देन कम्स प्रोटीन्स. प्रोटीन्स में ये यहाँ देखिए, दे आर रिच इन एनिमल फूड्स. एंड देन कम्स मिनरल्स, विटामिन्स, ये नॉन कैलोरिक है, राइट. तो अभी इसका ये क्लासेस है न्यूट्रिएंट्स की. नाउ health, another topic is health. What is health? If one has to define according to World Health Organization, इन्होंने health को कैसे define किया है? It is a state of complete physical, mental, spiritual and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity. यानी health का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि आपको कोई डिजीज नहीं है. हम क्या बोलते हैं हेल्थ, नॉर्मली हम क्या एसोसिएट करते हैं हेल्थ को कि वी आर फिट एंड फाइन, हमें कोई डिजीज नहीं है. बट हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है. हेल्थ में सभी चीजें होती है. फिजिकली यू आर फिट, मेंटली यू आर फिट, स्पिरिचुअली यू आर फिट एंड सोशल वेलबींग. सो देर आर 3 डायमेंशंस ऑफ हेल्थ. फर्स्ट इज फिजिकल हेल्थ. तो फिजिकल हेल्थ तो आपको पता ही है, अ पर्सन इज फिजिकल हेल्दी अगर वो, इफ शी इज लुकिंग अलर्ट, एनर्जेटिक, एक्सेट्रा. और मेंटल हेल्थ का क्या मतलब है कि आपके माइंड में इंटरनली जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रही होती हैं, राइट, यू आर कंटिन्यूसली थिंकिंग समथिंग एंड यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट समथिंग. सो देन इट मीन्स यू आर इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस. लेकिन मेंटल हेल्थ का मतलब क्या है कि यू आर फ्री फ्रॉम ऑल सच स्ट्रेस, यू आर फ्री फ्रॉम दोज इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, राइट. सो मेंटली भी ये जो है हम इस चीज को इग्नोर करते हैं. हम हेल्थ को नॉर्मली फिजिकल हेल्थ ही देखते हैं कि यू आर फिट और फाइन, बट हेल्थ ऑल्सो इंक्लूड्स मेंटल हेल्थ. देन कम्स सोशल हेल्थ. सोशल हेल्थ का मतलब क्या होता है कि वन इज एबल टू रिलेट टू अदर्स पीपल अराउंड. इट मीन्स यू आर सोशली हेल्दी, राइट. तो अगर आपको पता है कि आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है टुवर्ड्स अदर मेंबर ऑफ द सोसाइटी, and आपको दूसरों की प्रॉब्लम you are able to understand, right, you are empathetic, you are able to step into the shoes of others, it means you are socially healthy also, right. then spiritual health का मतलब क्या है कि you strive for meaning and purpose in life. ये intangible है, आप इसको you cannot see, you cannot touch, you cannot feel, you can only feel it. spiritually healthy हो means your mind is at peace. You are basically able to understand what is the purpose in life, why the life has been given to us, why we have got the birth. तो अगर आप ऐसी चीजों को सोचते हो और उसके बाद आप अपनी लाइफ में दूसरों के लिए बेसिकली यू डू गुड एक्शंस, so that is means spiritually you are healthy. Then primary healthcare. Primary healthcare is a whole of society approach to health and well-being centered on the need and preference of individuals, families and communities. So primary health care बहुत important है. You know that why it is important? क्योंकि it ensures कि जो लोग हैं उनको एक proper care मिले, right, and they get proper treatment. So primary health care facility should be given to everyone. So
It has referred to the provision of ambulatory और first level of personal health care services. यानी प्राइमरी हेल्थ केयर का मतलब है कि फर्स्ट लेवल जो प्राइमरी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं वो सबको मिलनी चाहिए, राइट। और कई लोग इसको कैसे बोलते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर को, कि जो लो इनकम पॉपुलेशन है जिसको हम बोलते हैं सिलेक्टिव प्राइमरी हेल्थ केयर, तो एटलीस्ट प्राइमरी हेल्थ केयर has been understood as a set of priority of health interventions for लो इनकम पॉपुलेशन, कि जो लो इनकम पॉपुलेशन है जो बहुत मेडिकल, आपको पता है कि आजकल कोई भी डिजीज हो और उसकी मेडिकल ट्रीटमेंट अगर करवानी है तो बहुत पैसा लगता है, but as far as primary basic healthcare facilities are there, it should be given to all, even जो low income populations हैं, they should not be deprived of such primary healthcare facilities. It should be given to all. So following components should be included in primary healthcare. क्या क्या चीजें आती है प्राइमरी हेल्थ केयर में, कि जितने भी प्रिवेलिंग हेल्थ प्रोग्राम्स हैं और मेथड्स हैं कि कैसे उनको प्रिवेंट करना है, कोई भी डिजीज को कैसे उसको कंट्रोल करना है, उसकी एजुकेशन जो है सबको मिलनी चाहिए. सो प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूड्स एजुकेटिंग द पीपल अबाउट वेरियस हेल्थ प्रोग्राम. देन प्रमोशन ऑफ फूड सप्लाई एंड प्रॉपर न्यूट्रिशन, ये भी प्राइमरी हेल्थ केयर में आता है. प्राइमरी हेल्थ केयर में क्या आता है कि सेफ वाटर और बेसिक सैनिटेशन, इसका भी ये भी सबको मिलना चाहिए, राइट. Then maternal and child health care, family planning, it is also included in primary health care. कोई भी infectious disease है, so immunization against those infectious disease, that is also primary health care. Then endemic diseases हैं, वो उनकी prevention, control. Then कोई भी disease है, common disease है या injury है, so treatment of those common disease and injuries, it is also a part of primary health care. Provision of essential drugs, it is also primary health, part of primary health care. Now what is nutritional status? अभी हमने nutrients की definition पढ़ी थी कि जो भी essential substance हमें food provide कर रहा है उसको हम nutrients बोलते हैं. But what is nutritional status? ये वो condition, it is a condition of health of an individual as influenced by the utilization of nutrients. So basically it's a health condition, right? And nutritional status है of an individual, अगर हमें पता लगाना है कि किसी भी इंडिविजुअल का न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या है तो हमें ये इंफॉर्मेशन चाहिए होगी कि कौन सी डाइट वो इंडिविजुअल कंज्यूम कर रहा है, किस तरह की उसको बीमारी है, क्या उसने कभी पास्ट में कोई भी ही हैज सफर्ड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिजीज, किस तरह के न्यूट्रिएंट्स वो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, what is the level of the nutrients and other substance in the blood and urine. तो किसी भी इंडिविजुअल का न्यूट्रिशनल स्टेटस अगर हमें पता लगाना है तो उसके लिए हमें ये तीन चीजें पता होनी चाहिए. क्या वो डाइट खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है, कितना लेवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स है उसके ब्लड में, एंड किस तरह की कोई इलनेस है जिससे वो सफर कर रहा है. Now, what is the relationship between nutrition and good health? Do you think there is any kind of relationship between the two? Yes, of course. अगर हम proper nutritious diet लेते हैं तो उसका बिल्कुल proper direct implication होता है हमारी health पे. If we are having good diet which is rich in various types of nutrients, we are going to have good health. But on the other hand, अगर हम वो diet ले रहे हैं which is deprived of nutrients, which is consist of junk food, it is going to have a negative impact on our health. So जो भी हम खाना खाते हैं, it should not only be nutritious, but वो proper wholesome होना चाहिए. wholesome का मतलब उसमें हर तरह का nutrients भी होने चाहिए, balanced होना चाहिए वो food, and clean होना चाहिए, and it should be free from germs. Now another concept is what is malnutrition. Normally हम क्या समझते हैं बेटा कि malnutrition का मतलब होता है कि nutrition की deficiency. But malnutrition में दोनों चीजें होती है. अगर nutrients की deficiency है, that also comes in malnutrition. अगर हम excess nutrition consume कर रहे हैं, that also comes in malnutrition. So malnutrition includes both undernutrition
It includes overnutrition also. Undernutrition का मतलब क्या है? Deficiency of nutrients. और overnutrition का मतलब क्या है? Excess of nutrients. Right? So with this, our first chapter is over. In the next video, I will be coming up with the next chapter, chapter number 2. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video. Please hit the like button, share and subscribe to my channel. Thank you.